हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोणार्क क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैड इन द लास्ट सेशन। पिछले सेशन में हमने देखा था कि बेसिक्स ऑफ द ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस, देन वी फाउंड द वैल्यूज, साइन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस। अभी इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैड इन द प्रीवियस सेशन। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज दैट इफ cos x इक्वल टू -3/5 and x lies in the third quadrant, find the values of the other 5 trigonometric functions. Okay, so how to solve this one? First and foremost, what we should do, we should draw the quadrant first. Okay, so this is the quadrant, okay, and we no need to draw the entire quadrants precisely correct. Only thing is that lies in the third quadrant. Third quadrant means this is the one. Okay, in this quadrant we know that only tan is positive, and its reciprocal cot positive, tan और cot positive. मैं थोड़ा इसको बड़ा लिख देता हूँ तो आपको, तो इसमें यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव है। तो हमको क्या दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू -3/5, cos x इक्वल टू -3/5, then what is the value of sin x? The value of sin x, so we can apply the rule sin square x equal to 1 minus cos square x. Okay, so sin square x equal to 1 minus cos square x, so this is equal to 1 minus -3/5 whole square, that is equal to 1 minus 9/25, that is equal to 25 minus 9/25, that is equal to 16/25, that is equal to 4/5 whole square. So what we get, हमको क्या मिला, sin square x equal to 4/5 whole square. That implies, so हम क्या लिख सकते हैं, sin square x equal to 4/5 whole square. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब sin x शुड बी इक्वल टू ±4/5, लेकिन हम किसका वैल्यू ले, प्लस ले या माइनस ले, दैट डिपेंड्स ऑन, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वी शुड टेक द ओनली नेगेटिव वैल्यू। सो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स शुड बी -4/5. द मोमेंट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -4/5, then cosec x, that should also be, negative, and it is reciprocal of sin, that is equal to -5/4. Okay, we need to find the 5 trigonometric functions. इसमें हमको 2 मिल गया। अच्छा, cos x equal to -3/5, that implies sec x equal to -5/3. ओके, तो हमको मिल गया 4, sec x मिल गया, ये है 3, और cos x तो दिया हुआ था 4। सिर्फ हमको बाकी है अभी tan x एंड cot x. ओके, व्हाट इज tan x? tan x होगा, tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x. sin x क्या है, सो यहाँ पर लिख देते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x? -4/5, -4/5, और cos x का वैल्यू क्या है, -3/5, -3/5. तो माइनस माइनस कैंसिल्ड, 5 and 5 cancelled, we get 4/3. So this implies we get the value of tan x is equal to 4/3. And you see, tan पॉजिटिव होना था क्योंकि तो x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव भी निकल के आया, tan is equal to 4/3. tan 4/3 होगा तो हमको मिलेगा cot x equal to 1/tan x, that is 3/4. तो हमको बाकी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकल कर आया। cos x दिया था -3/5, तुरंत हमको मिल गया sec x इक्वल टू -5/3.
इसके बाद हमने साइन स्क्वायर एक्स अप्लाई किया, वो मिला है साइन एक्स इक्वल टू -4/5, कोसेक एक्स -5/4, tan एक्स मिला साइन एक्स बाई कॉस एक्स दैट इज 4/3, तो कॉट एक्स हो गया 3/4. फाइन, मिल गया, हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट इन द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, इन द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट हैज बीन आस्क्ड दैट इफ cot x equal to -5/12, x lies in the second quadrant, find the values of the other 5 trigonometric functions. Okay, let's see, let the quadrant be same, the drawing of the quadrant is same, and what we need to do is that we need to first write that cot x equal to -5/12. So if we write cot x equal to -5/12, so second question. ओके, सो cot x इक्वल टू, so इसका सोल्यूशन निकल रहे हम, cot x इक्वल टू -5/12 and x lies in the second quadrant. Okay, this is second quadrant. In second quadrant we know sine positive and its reciprocal cosec that is also positive. Okay, so cot x equal to -5/12. So from here, so this is so given, so from here we can find that tan x, this implies tan x equal to -12/5. Okay, so tan का वैल्यू में निकल के आ गया, tan x equal to -12/5. Now let us find the value of cosec square x. Okay, cosec square x is equal to 1 plus cot square x, that is the formula we have derived in the last session. Okay, so this is equal to 1 plus cot square x, that is equal to -5/12 whole square, that is equal to 1 plus -1 whole square is +1, so 5 whole square is 25 divided by 12 whole square is 144, that is equal to 144 plus 25 divided by 144, that is equal to 169 divided by 144, that is equal to 13/12. Okay, complete whole square. So this is equal to, this is cosec square x, so this implies, so we can write it here, cosec square is equal to -13/12. So this implies cosec x equal to ±13/12. बट हमको क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है? प्लस लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दैट एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो हमको जो वैल्यू लेना है कोसेक का, कोसेक एक्स हो जाएगा 13/12. निकल के आ गया कोसेक का वैल्यू. द मोमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स, हमको साइन का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा. साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स, वो होता है 12/13. तो साइन एक्स का वैल्यू भी निकल के आ गया. तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें 4 आ गया. क्या बाकी क्या है? कॉस बाकी है. तो हम कैसे लिखे कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू tan x इंटू, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं cot x इंटू sin x. cos x को हम लिख सकते हैं cot x इंटू sin x, बिकॉज cot x इक्वल टू cos x by sin x, and that sin x will get cancelled. But what is the value of cot x we got? The value of cot x is actually not we got, it is given -5/12, and the value of sin x we got 12/13. 12/13. So we get the value of cos x as, so we get the value of cos x as -5/13. Okay, the moment we get the value of cos x as -5/13, तो हमको sec x का वैल्यू भी निकल जाएगा बहुत आसानी से, वो होता है -13/5, and that is absolutely correct because in the second quadrant cos is negative. So we get all the 5 values, हमको all
बाकी 5 ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकाल गया। ओके, क्या है, cot x गया था, tan x हमने मिल गया उसी वक्त 1/cot x। उसके बाद हम cosec स्क्वायर x निकाला, cosec स्क्वायर x तो cosec x पॉजिटिव होगा, साइन भी निकाल गया। उसके बाद cos x लिखा, cot x इंटू साइन एक्स, तो cos x निकाल गया, sec x निकाल गया। ओके, तो 6 वैल्यू निकाल के आ गया। तो क्या ध्यान देना है, ध्यान इसी देना है, जो क्वेश्चन जब बोला है तो उसमें देखना है कि एंगल जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमको जो लेसन्स लर्न मिलता है वो है कि जो सवाल दिया है उसमें जो एंगल जो है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, उसी क्वाड्रेंट में जो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, वो दोनों को छोड़ के बाकी सब का नेगेटिव वैल्यू लेना है। ओके, फाइन। नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन आंसरिंग द थर्ड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो फिर भी इस सेशन में देख लेते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। तो कैसे निकाले देख लेते हैं। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। तो साइन 31 पाई बाई 3, तो इफ यू रिमेंबर, आपको याद हो तो हमको कैसे लिखना है इसको, दैट यू नीड टू राइट इज इक्वल टू साइन इंटू एन इंटू पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री का एक मल्टीपल एन प्लस कोई भी एंगल होगा जो कि ना 90 डिग्री से कम होगा। मान लो कि एक फाई बोल के कुछ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 31 पाई को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, दिस इज इक्वल टू साइन इंटू 10 इंटू पाई बाई 2, ओके सॉरी 31 10 इंटू पाई बाई 2 प्लस 31 बाई 2, ओके 10 इंटू पाई बाई 2, सो प्लस पाई बाई so 3 and 31, 10, so 10 is 31, 10 into pi, 10 into pi, let me write it down here. So this we can write is that 10 into pi plus pi by 3, correct na? That we can write like this, 10 pi plus pi by 3. Now 10 pi we can write is that sine of 20 into pi by 2 plus pi by 3. So now अभी क्या देखना है, 20 into pi by 2, मतलब pi by 2 का मल्टीपल जो है 20, जो कि इवन नंबर है, तो हम साइन को साइन ही रखेंगे। तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होएगा साइन ऑफ pi by 3, but whether it is positive or negative, that depends on that entire angle 31 pi by 3 is in which quadrant, and in that quadrant sine is positive or not. तो वो पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये चारों क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया। अभी देखते हैं 10 पाई का मतलब होता है 5 इंटू 2 पाई, मतलब 1 2 पाई, 2 2 पाई, 3 2 पाई, 4 2 पाई, 5 2 पाई, मतलब 2 पाई का कितना भी मल्टीपल हो हम यहाँ पर ही पहुँचते हैं। इसके बाद आता है पाई बाई 3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो हम इसको प्लस साइन पाई बाई 3 लेंगे, और इसका तो हमको वैल्यू पता है √3/2। बहुत आसानी से निकल गया। तो क्या करना है, कोई भी बड़ा एंगल दिया हो तो उसको पहले n इंटू पाई बाई 2 करना है। रेडियन में दिया है तो n इंटू पाई बाई 2 करना है, डिग्री में दिया है तो n इंटू 90 डिग्री करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर रहेगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा, मतलब पाई बाई 2 से कम रहेगा, और उसके बाद फॉलो करना है कि जो n है वो इवन है या ऑड है। इवन होगा तो वही फंक्शन रहेगा, ऑड होगा तो उसका को फंक्शन रहेगा। उसके बाद साइन डिसाइड करना है, तो साइन डिसाइड करने के लिए जो इनिशियल फंक्शन जो इनिशियल एंगल जो दिया था वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है वो पता करना है, और उसी क्वाड्रेंट में वो जो गिवन फंक्शन है, गिवन ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है कि नहीं, जो कि ना यहाँ पर हमने किया है।
अभी लास्ट सवाल में आते हैं, वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। ओके, okay, so let's look into this one. Is that cos 1710 degree, cos 1710, sorry, minus is there degree. हमको पता है कि cos of minus x is equal to cos x. So एकदम बिना कोई संकोच करके हम इसको लिख सकते हैं cos of 1710 डिग्री। अभी इसमें डिग्री में दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम 90 से डिवाइड करते हैं, इसको 90 से डिवाइड करेंगे 1710। ओके, तो पहले इसको आता है 190 180, सो यहाँ पर आएगा 0, तो ये आएगा 9810, करेक्ट। So what we get is that, so remainder we get it as 0. So what we get here is that this is equal to cos 19 into 90 degree plus 0 degree। अभी ये देखना है कि 19 इंटू 90, 19 क्या है, ऑड है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस का कोफंक्शन आएगा साइन, तो ये होगा साइन 0 डिग्री, और प्लस और माइनस ये डिपेंड करता है कि ये जो 1710 डिग्री है ना वो कौन सा क्वाड्रेंट में है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखना भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, साइन 0 है ना, इसका वैल्यू 0 होता है, ये प्लस है या माइनस है उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, तो हम उसमें जाएंगे ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे इसका 0। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकल गया ये वैल्यू। शायद आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगला सेशन में। थैंक यू वेरी मच।